Very good morning, students. How are you? And how is your study going? Right? I hope it's all well, right? So, this is the session of mathematics for the class 7 CBSE, and the name of the topic that we are discussing here, that is fractions and decimal, right? In the last lectures, we have seen the exercise 2.1 and 2.2, right? And after completing that exercises, today we will see the exercise 2.3, right? So before solving the exercise, I want to show you which type of question they will ask in the exercise 2.3, right? So as you can see on the screen, there are the question. The first question is given, the find. The first question is 1 upon 4 of, here is given a, right? Here is given a, right? So you have to find the 1 upon 4 of 1 upon 4, right? 1 upon 4 of 3 upon 5 and 1 upon 4 of 1 upon 4 upon 3, right? This type of question they are asking. So it means that in this exercise you have to multiply the फर्स्ट फ्रैक्शन विद द अनदर फ्रैक्शन, यानी आपको यहाँ पर दो फ्रैक्शन दिए रहेंगे. इट मे बी प्रॉपर फ्रैक्शन और इट मे बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो यू हैव टू लर्न दैट how to multiply the one fraction with the another fraction. So this type of question here we have to do, right? So this is the question number 1, and again you can see in the question number 2, 1 upon 7 of 2 upon 9, 1 upon 7 of 6 upon 5 and 1 upon 7 of 3 upon 10. So it means that you have to multiply 1 upon 7 one by one with all the fraction which is given in the question, right? So this was the first type of question which they ask into the exercise, and you can see the question number 2. Here you can again see that there are some improper fractions and the proper fractions are given. In the first question you can see that there is the improper fraction, it is multiplied with the proper fraction. In all the questions you can see this is the second, third, fourth. So in all these questions you can see that the one fraction is multiplied with the another fraction, right? So this type of question they will ask. So now the third question you can see the multiply the following fraction. Again you have to multiply one fraction with another fraction, and in the question number 4, which is highlighted in the yellow color, you can see that here there are two fractions are given, right? Here you can see that there are two fractions are given, 2 upon 7, that is the first fraction, and 3 upon 4. So we have to compare these fractions, which is the greater, right? And here in the second question you can see 1 upon 2 or 6 upon 7 or 2 upon 3 of 3 upon 7. So here we have to compare all these fractions, right? तो ये हमको यहाँ पर करना होगा. And in the question number 5 again you can see that there is the multiplication of the fraction is they are asking into that, है ना. And question number 6 में भी आप देख सकते हैं, question number 7 and question number 8. So after looking the exercise and the questions of the 2.3, you can understand which type of question we will solve in this session, right? So let us understand that first and then we go to the, so let's understand the example first and then we come to the exercise. So what is the part that we want to learn here, right? So this is the part 3 of the chapter fraction and decimal of class 7. So as you can see that part 3, and our topic is multiplication of a fraction by a fraction, right? The one fraction should be multiplied with the another fraction. So it may be proper or improper, right? So we have already seen what are the proper and improper fractions, right? So let us start with one example. So here the example is given. So suppose I can take a rope, राइट यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें हम एक रोप का एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज दिस इज द रोप, राइट. ये कोई रस्सी है एंड इस रस्सी को हमको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, राइट. सो हियर वी कैन ऑल्सो कंसिडर दैट द लेंथ ऑफ दिस रोप दैट इज़ 9 मीटर और सेंटीमीटर, दोनों में ही हम ले सकते हैं. 9 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं और 9 मीटर भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर मैंने लिख के दिया है. तो 9 सेंटीमीटर की ये जो रोप है या 9 मीटर की जो रोप है, वी हैव टू डिवाइडेड दिस रोप इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स. सो व्हाट वी कैन डू दैट, वी कैन डू द जनरल आइडिया. इफ़ वी हैव द रोप सो वी हैव टू फोल्ड इट वंस, राइट. फर्स्ट हम यहाँ पर इसको रोप को फोल्ड करेंगे, सो वी विल गेट द 2 पार्ट्स हियर,
यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको अगर मैं फोल्ड कर दूँ तो ये यहाँ से बीच में से दो पार्ट हो जाएंगे। सो सपोज यहाँ पर आप देख रहे होंगे, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, ये जो है ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है, दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। और यहाँ से अगर आप देखेंगे, सो दिस वुड बी द सेकेंड पार्ट ऑफ द रोप, राइट। सो व्हाट वी कैन कॉल दिस फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट इन द मैथमेटिकल फॉर्म। हम यहाँ पर इस पार्ट को किस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सो वी कैन राइट इट एज द 9/2, राइट। दिस इज द 9/2 एंड इट इज़ ऑल्सो द 9/2 पार्ट, राइट। यहाँ पर हम इस पार्ट को 9/2 बोल सकते हैं, राइट। सिमिलरली व्हाट वी कैन सी दैट, हमको यहाँ पर चार पार्ट में डिवाइड करने के लिए कहा है, राइट। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, राइट। एंड अगेन वी कैन कंप्लीट दिस रोप, यहाँ पर मैंने इस रोप को फिर से कंप्लीट कर दिया है, राइट। तो हमको चार पार्ट, तो एक तो हमने देखा कि इस रोप को हम एक बार फोल्ड करेंगे। नाउ आफ्टर वी हैव द टू इक्वल पार्ट्स, वी कैन डिवाइड द, वी कैन अगेन फोल्ड दिस पार्ट्स, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने इस रोप को एक बार और फोल्ड कर दिया है, राइट। सो अगेन वी हैव गॉट द टू पार्ट ऑफ द सेम लेंथ, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये जो हमारा पार्ट हो गया है ये हो गया है फर्स्ट पार्ट, राइट। ये जो पार्ट हो गया है ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया और ये फोर्थ पार्ट हो गया। एंड यू कैन सी दैट ऑल द पार्ट्स आर इक्वल इन लेंथ, राइट। देख रहे हैं आप यहाँ पर सभी जो पार्ट है वो इक्वल लेंथ के होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो चार पार्ट हैं इक्वल लेंथ के, उनकी सभी की लेंथ क्या होगी, राइट। तो पहले हमने एक रोप के दो पार्ट किए थे, तो एक जो पार्ट था उसको हम यहाँ पर 9/2 कह रहे थे, राइट। अब यहाँ पर जो इक्वल पार्ट है इनको हम एक पार्ट को यहाँ पर हम 9/4 कहेंगे, राइट। सो वी कैन राइट दैट पार्ट दैट इज 9/2, सॉरी 9/4, नॉट 9/2 बिकॉज 4 पार्ट है। तो यहाँ पर हम 9/4, राइट, प्लस 9/4 प्लस 9/4, राइट, प्लस 9/4, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको तोड़ दिया है, राइट, इसको हमने तोड़ दिया है। सो वी कैन, यहाँ पर हम प्लस का जो साइन है वो निकाल देते हैं। तो यहाँ पर 9/4 पार्ट के आपको चार इक्वल पार्ट मिल जाएंगे, राइट। इस तरीके से हम यहाँ पर डिवीज़न कर सकते हैं कि किसी एक रोप को हम जब तोड़ेंगे तो उसके पार्ट हो जाएंगे। अगेन सेम चीज़ को अगर हम यहाँ पर समझें, सो यू कैन हैव हियर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमको एक सर्कल डायग्राम दिया हुआ है, यू कैन सी दिस डायग्राम। सो द होल एरिया ऑफ द सर्कल इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 3 इक्वल पार्ट्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज राइट, दिस इज द शेडेड रीजन, ये जो ब्लैक मैंने यहाँ पर किया है, दिस इज द शेडेड रीजन which is into the black and it is the shaded area. So this is the third part of the whole area of the circle, right. तो यहाँ पर हम इसको अगर डिनोट करें तो आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट हो गया, एंड ऑल द 3 पार्ट्स आर इक्वल इन देयर एरिया, राइट। तो अगर हम इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना चाहें तो हम यहाँ पर जो शेडेड एरिया है और बाकी के दो जो एम्प्टी स्पेस दिख रही है आपको, हम उसको यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज़ ये एरिया है तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3, राइट, दैट इज़ 1 आउट ऑफ 3, राइट, प्लस 1/3, राइट, दैट इज़ द सेकेंड एरिया, एंड प्लस 1/3, दैट इज़ द थर्ड एरिया। तो ये हो जाएगा हमारा 3/3, दैट इज़ इक्वल टू 1, दैट इज़ द होल सर्कल, राइट, दैट इज़ इक्वल टू होल सर्कल। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से हम यहाँ पर आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमको मल्टीप्लिकेशन के थ्रू अगर इसका एरिया निकालना है, अभी तो हमने यहाँ पर एडिशन देखा, अगर इसी को अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कैलकुलेट करूँ तो हमने देखा यहाँ पर एक पार्ट जो है दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। तो एक रीजन जो है उसका जो एरिया है वो है 1/3 एंड द कंप्लीट सेक्शंस और द पार्ट वी हैव सीन द 3, राइट। तो आप यहाँ पर देखेंगे 3 मल्टीप्लाई विथ 1, राइट, सो दैट इज़ 3 एंड दिस इज अगेन 3 एंड दैट इज इक्वल टू 1, राइट। सो दैट इज़ द होल एरिया और द कंप्लीट 1 एरिया ऑफ द सर्कल। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं हाउ टू डिवाइड द एरिया इनटू द डिफरेंट फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ये दिस इज द 3, दैट इज द होल नंबर एंड इट इज़ मल्टीप्लाई विद द फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, राइट। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। Again we can see the example where we can see how we multiply the one fraction with the another fraction, right। वो भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है ना, वो एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, राइट। सो कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल।
So in the last example, what we have seen that how to divide the area into the different fractions and how to multiply them and how to add them, ये हमने यहाँ पर देखा. Now we can do the activity, right? Here यहाँ पर आपको एक activity दिया हुआ है, try this. ये हम यहाँ पर करके देखते हैं. You can see that this is the question, try this. And यहाँ पर हमको ये कहा गया है fill in the these boxes, है ना. Here you can see that boxes are empty and we have to fill them, right? यहाँ पर हम इसको fill कर सकते हैं. तो आइए इसको देखते हैं अपन इनको कैसे किया जाएगा, right? So let us see that. यहाँ देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे. तो हमको यहाँ boxes को fill up करना है. So suppose we take the first question. So fill these boxes and the first question is given, right? What is the first question? We will see, we are looking for that 1 upon 2 multiply with 1 upon 7. So here you can see that both are the fractions and they are multiplying with each other, and by solving that we can fill this box, right? So we can do it geometrically as well as algebraically, दोनों ही तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं, राइट. सो यहाँ पर ये जो बॉक्स है ये काफ़ी छोटा है, तो हम इसको जो है थोड़ा बड़े बना लेते हैं, बड़े लेवल पे बना लेते हैं. सपोज़ यहाँ पर मैं एक ये जो बॉक्स आपको दिया हुआ है यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे, इसको मैं बना लेता हूँ. यहाँ पर थोड़ा सा जो है प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ठीक है. यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना लिया. अब आपको कहा गया है कि इसको फिल करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर द मल्टीप्लिकेशन इज गिवन, राइट. सो वी आर मल्टीप्लाइंग विथ न्यूमरेटर विद द न्यूमरेटर, राइट, एंड द डिनोमिनेटर विद द डिनोमिनेटर, राइट. ये हम कर रहे हैं यहाँ पर. तो इसको हम यहाँ पर करते हैं. सो वी मल्टीप्लाई 1 into 1, so we will get 1, right? And if we multiply 2 into 7, so I will get 14, right? It means that कि यहाँ पर ये जो बॉक्स दिया है इसका जो एरिया होगा वी हैव टू मेक द 14 पार्ट्स. इस पूरे एरिया के हमको 14 पार्ट बनाने हैं, राइट. और वो 14 पार्ट कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. सो व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमको इसका एरिया जो डिवाइड करना है वो हमको इस तरीके से करना है. पहला जो फ्रैक्शन आपको दिया है 1/2. सो व्हाट वी कैन डू दैट द एरिया ऑफ दिस बॉक्स वी हैव टू डिवाइडेड इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स. सो वी कैन डू लाइक दिस, राइट. यहाँ पर बीच में मैं एक सेंट्रल जो लाइन है यहाँ पर बना देता हूँ. सो यू कैन सी दैट द एरिया इज डिवाइडेड इनटू द 2 इक्वल पार्ट. आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला जो एरिया है दैट इज़ द ब्लू, राइट. इसको मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ. दैट इज़ द ब्लू एरिया, that is the half part, right? That is the 1/2 part of the whole area of the box. And another one is यहाँ पर मैं इसको red color दे देता हूँ. So you can see that that is the half part of this box, right? इस तरीके से मैंने कर दिया. तो यहाँ पर ये जो हो गया, ये वाला जो एरिया है ये 1/2 हो गया और ये वाला एरिया भी क्या हो गया, 1/2 हो गया, right? Now again we do the same like the जैसे हमने रोप के एग्जाम्पल में देखा था, यहाँ पर हम सेम करेंगे. अब इस एरिया को, हाफ को हमको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, राइट. 7 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे. सो हाउ वी कैन डिवाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द पार्ट्स, सेक्शन हम बना देते हैं यहाँ पर. जैसे कि मैंने 1 2 3 4 5 and 6. सो यू कैन सी दैट दिस हाफ एरिया इज डिवाइडेड इनटू द इक्वल 7 इक्वल पार्ट्स, राइट. तो आप देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, fourth, fifth, sixth and seventh part, right. Again the same thing I have to do in the lower box which is red in color, right. So 1 2 3 4 5 and 6 इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड कर दिया है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दिस इज द 1, दिस इज 2 3 4 5 6 and 7. So again you can see in the above box this is the first part, second part, third part, fourth part, fifth part, sixth part and seventh part. So 7 plus 7 you can see there are the 14 parts. So this is the 1/14 part each, right. That this is the 1/14 part each. तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको ज्योमेट्रिकली मैंने यहाँ पर समझा दिया है कि कैसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, और एल्जेब्रिकली हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देख चुके हैं. यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे हम मल्टीप्लाई करके इस बॉक्स को फिल कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो फिल दैट बॉक्स ज्योमेट्रिकली, राइट. सो स्टूडेंट्स, देखा आपने यहाँ पर ज्योमेट्रिकली और मैथमेटिकली हमने एल्जेब्रिकली कैसे इसको सॉल्व किया. नाउ वी कम टू द एग्जाम्पल नंबर 6, राइट. यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 जो दिया हुआ है यहाँ पर आ जाते हैं हम. दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 6. इन दिस एग्जाम्पल वी कैन सी दैट द क्वेश्चन इज दैट सुशांत रीड 1/3 पार्ट ऑफ द बुक इन 1 hour, right. 1/3 part of the book in 1 hour, and how much part of the book
विल ही रीड इन 2 1/5 आवर्स, यानी कि 2 1/5 आवर्स में वो कितना बुक का पार्ट पढ़ चुका होगा, राइट ये हमको बताना है. सो 1/3 पार्ट ऑफ द बुक इन 1 आवर, राइट इस तरीके से दिया हुआ है, राइट. सो वी हैव टू मेक द डिवीजन ऑफ द बुक, राइट. सपोज इफ़ वी ड्रॉ द बुक, जैसे कि यहाँ पर मैं इस बुक को ड्रॉ करके आपको बताता हूँ. जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज दिस इज़ द बुक, यहाँ पर मैं जो है एक बुक बना रहा हूँ, राइट. और इस बुक को आप देख सकते हैं, ये बुक है. एंड सपोज इट इज़ द विड्थ ऑफ द बुक, ये बुक है हमारी एक, ये एक मैंने बुक बनाई है. और इस बुक की जो मोटाई है ना, इस बुक की जो मोटाई है उसको हम यहाँ पर ऐसे 3 पार्ट में हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं. सो एज यू कैन सी दैट, राइट. तो यहाँ पर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दैट इज़ द, दिस इज़ द पार्ट विच इज़ द 1/3 पार्ट. और ये जो 1/3 पार्ट है इसको ये 1 घंटे में कवर कर देते हैं. एंड यहाँ पर आप दूसरा पार्ट देख सकते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पर मैं ब्लू कलर में कर देता हूँ. ब्लू शेडेड एरिया है जो दिख रहा है, दिस इज़ द 1/3 पार्ट, है ना, दैट इज़ इन द नेक्स्ट आवर. एंड लास्ट में अगर हम देखें यहाँ पर सबसे नीचे जो ब्लैक एरिया दिख रहा है, ये जो ब्लैक एरिया दिख रहा है ना, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से. ये जो ब्लैक एरिया है, मैंने तीनों कलर यूज़ किए हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो है वो रेड है, एंड सेकंड एरिया दैट इज़ ब्लू, एंड द लास्ट वन विच इज़ द ब्लैक. एंड दिस ऑल एरिया आर इक्वल. सो द रेड इज़ 1/3, रेड जो है वो 1/3 है. यहाँ पर ब्लू जो है वो 1/3 है, और जो ब्लैक है वो भी 1/3 है. तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया, राइट. सो ये इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, राइट इस तरीके से. नाउ अब ये कह रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर 1/3 पार्ट, यानी कि जो रेड एरिया है वो 1 घंटे में कंप्लीट कर दिया होगा, फिर दूसरे घंटे में ब्लू एरिया कंप्लीट कर दिया होगा, और तीसरे घंटे में अगर हम देखेंगे, तीसरा घंटा जो है, द थर्ड आवर इज़ नॉट कंप्लीट, राइट, दैट इज़ समहाउ लेस देन 1 आवर, राइट. तो हमको यहाँ बताना है कि कितना टाइम उनको लग रहा है. तो टाइम तो हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ द टाइम, बट हमको बताना है कि बुक का कितना पार्ट उन्होंने कवर किया है. तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व भी करके बताया हुआ है, आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में, है ना. तो द पार्ट ऑफ द बुक, राइट, यहाँ पर लिखा है द पार्ट ऑफ द बुक रीड बाय द सुशांत इन 1 आवर दैट इज़ 1/3, इट इज़ ऑलरेडी गिवन, राइट, यहाँ पर दिया हुआ है ये. और अब हम आगे क्या देख रहे हैं. सो द पार्ट ऑफ द बुक रीड बाय हिम दैट इज़ 2 1/5, दैट इज़ इक्वल टू 2 1/5 इंटू 1/3. तो हमको टोटल जो पार्ट जो कवर किया है उसके लिए यहाँ पर हमको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. तो यहाँ पर 1/3 पार्ट विच इज़ कवर्ड इन 1 आवर, and it should be multiplied with the total time which is given in the question, right. So definitely we will get the answer, and the answer will be 11/15, which you can see on the screen, right. So this is the mixed fraction. ये जो fraction है ये mixed fraction है, इसको आप simplify करेंगे पहले. 5 to the 10 और 10 plus 1 11, 11/5, और 11/5 को जब आप 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, so you will get this fraction which is 11/15. 11/15 जो है आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, राइट. तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्वेश्चन में देखा कि हमको यहाँ पर एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू मल्टीप्लाई वन फ्रैक्शन विद द अनदर फ्रैक्शन. हियर यू कैन सी द अनदर एग्जाम्पल ऑन द स्क्रीन. यू कैन ट्राई दिस एक्टिविटी, राइट. यहाँ पर ये जो एक्टिविटी दिख रही है आपको, मैंने यहाँ पर सर्कल किया है इसको, इस एक्टिविटी को यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं. व्हाट इज़ द एक्टिविटी? 1/3 which is multiply with 4/5, right. तो करके देख लेते हैं हम यहाँ पर. 1/3 which should be multiply with 4/5. So what we have to do? We have to multiply numerator with the numerator. So 4 1s are 4, right. So it is 4, and 3 5s are 15. So 4/15, that is the multiplication of the two fraction. And here is another fraction is also given, right. यहाँ पर हम देख रहे हैं another fraction यहाँ पर हमको दिख रहा है. दूसरा जो फ्रैक्शन है वो है 2/3, एंड इट शुड बी मल्टीप्लाई विथ 1/5, राइट. तो 2 1s are 2, एंड 3 5s are 15. सो हियर वी हैव गॉट द 2/5. और पहला वाला जो हमने सॉल्यूशन किया था, यहाँ पर हमको जो फ्रैक्शन मिला था वो मिला था 4/15, राइट. तो एक फ्रैक्शन तो हमारा ये है 2/15, और दूसरा फ्रैक्शन है हमारा 4/15. सो वी हैव टू कंपेयर दिस फ्रैक्शंस. यहाँ पर हमको इसको कंपेयर करना है और देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा यहाँ पर बड़ा है और कौन सा छोटा है, इस तरीके से. सो वी कैन ऑल्सो कंपेयर द
फ्रैक्शन वैल्यूज, राइट. सो 2/14 एंड 4/15 में जो फ्रैक्शन बड़ा होगा उसको हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट. तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर आएंगे, राइट. Now after completing this example we come to the value of the products, right. The next topic is value of the products, right. So इसको आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये हमको अब करना है वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स. नाउ वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट में हमको यहाँ पर देखना है कि हम किस तरीके से दो जो फ्रैक्शंस होते हैं उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. सो लेट अस सी डू दिस टेबल, राइट. सो इट वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं. जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं 2/3 मल्टीप्लाई विथ 4/5 दैट इज इक्वल टू 8/15 एंड 8/15 दैट इज़ लेसर देन 2/3, यानी कि ये जो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमको जो दिया है 2/3 इससे ये छोटा है, एंड 8/15 विच इज़ ऑल्सो लेसर देन द 4/5, राइट. 4/5 से भी ये छोटा है. सो इन द कंक्लूजन व्हाट दे हैव रिटन, प्रोडक्ट इज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन, यानी कि इन दोनों फ्रैक्शन का प्रोडक्ट जो है 8/15 ये जो है दोनों दिए हुए फ्रैक्शन से छोटा है. सो लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल व्हाट दे हैव गिवन. यहाँ पर 1/5 देखते हैं, ये वाला फ्रैक्शन हम देख रहे हैं 1/5 मल्टीप्लाई विथ 2/7. सो 2 1 ज़ा 2 एंड 5 7 ज़ा 35. सो हियर वी हैव गॉट द वैल्यू 2/35. तो 2/35 जो है वो 1/5 से छोटा है या बड़ा है, ये आपको कंपेयर करना है. एंड अगेन यू हैव टू कंपेयर दिस 2/35 विथ 2/7, इससे भी आपको कंपेयर करना है. एंड जस्ट राइट द कंक्लूजन ओवर हियर, राइट. So students, here you can see that we have got 2/35 and you can see that 2/35 जो है, right, that is lesser than 1/5, right, as well as you can see that 2/35 which is also lesser than 2/7, right. So again you can see that product is less than each of the fraction, right. Product is less than each of the fraction. तो ये आपको यहाँ पर करना है, right. So in the same way you can do the another example, right. इसके यहीं पर ही आपको फिगर में जो है वो दिख रहा है another example. जो अगला एग्जाम्पल है वो दिया हुआ है आपको यहाँ पर 3/5 एंड मल्टीप्लाई विथ 8/8, यानी कि यहाँ पर आपको आंसर नहीं दिया हुआ है, राइट. 3/5 मल्टीप्लाई विद द अनदर फ्रैक्शन. तो आप यहाँ पर अपने मन से फ्रैक्शन बना सकते हैं एंड यू कैन राइट द आंसर, राइट. एंड इन द लास्ट एग्जाम्पल यू कैन सी दिस इज द एग्जाम्पल. ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं 2/dash, you can put any number into that because the answer into that answer is given 8/45, right. 8/45 दिया है, so we have to put the specific number. So what are those numbers if we multiply with that 9, so we will get 45 as the denominator. So we know that 9 को हम 9 is the multiple factor of the 45. तो यहाँ पर हम कौन से नंबर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 45 आ जाएगा, ठीक है. तो वो आप नंबर ढूंढ सकते हैं, जैसे कि यू कैन सी दैट 2 into 4 दैट इज इक्वल टू 8, राइट. सो इफ़ वी मल्टीप्लाई 45 बाय 9 सो वी विल गेट दैट नंबर, राइट. तो वो नंबर क्या होगा, राइट. हियर if we multiply 45 with 9 so we will get 5, right. So 9 5s are 45, so here we can write 5. So the fraction become 2/5 multiply with 4/9 and then after you can make the conclusion, right. इस तरीके से आप इसका conclusion बना के निकाल सकते हैं, right. Now we come to the next point. ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से. और यहाँ पर देखिए मैंने येलो से यहाँ पर ये जो पॉइंट है जो अभी तक हमने सारी एक्टिविटी की है उसका एक कंक्लूजन पॉइंट यहाँ पर मैंने लिख के रखा है. व्हेन 2 प्रॉपर फ्रैक्शंस आर मल्टीप्लाइड, यानी कि किसी 2 प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है सो द प्रोडक्ट इज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन. तो अगर प्रोडक्ट हमारा जो भी हमारे जो दिए हुए फ्रैक्शन है उससे अगर कम आता है, राइट, और we say the value of the product of the 2 proper fraction is smaller than each of the 2 fractions. So this condition is possible कि अगर हमको कोई 2 फ्रैक्शन दिए हैं और अगर हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी रिजल्टेंट फ्रैक्शन है, राइट, उसकी जो वैल्यू होगी वो दिए हुए फ्रैक्शन से कम हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है. इन द नेक्स्ट टेबल यू कैन सी दैट, राइट. वही एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पर
इसको सर्कल कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं. 7/3, right? 7/3, that is the first fraction, and it is multiplied with 5/2, so we will get 35/6. So this 35/6 that is greater than 7/3, यानी 7/3 से बड़ा है, और 35/6 जो है वो 5/2 से भी बड़ा है. So here what we can see that यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, what is the conclusion? Product is greater than each of the fractions. So both the condition is possible, right? It is not compulsory that every time whatever the resultant fraction we are getting, which is smaller than the given fraction, right? It may be the greater than the given fractions. Both the condition can be applied over here, right? तो ये आप देख सकते हैं. सो इन द यहाँ पर येलो कलर से मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है. द प्रोडक्ट ऑफ द टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस, और द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज मोर देन that each of the two fractions. So both the conditions are possible over here, right? So this is the topic in which we have learned about how we multiply the two fractions and what is the value of the resultant fraction and the given fractions, right? So we can compare those values. So I hope students कि ये सारे example आपको समझ में आए होंगे, and now you will be able to solve the exercise 2.3. So we have covered all type of examples in this activity, and now you are ready to solve the exercise 2.3. and if you have any query, so you can ask me, and just watch the video by making pauses, and you have to keep the paper and pencil or pen with yourself, and you can also have the geometry box. Whatever the question related with the geometry and the algebra, you can make the example on your pen and paper and just learn it practically, right? इसको आप practically learn कीजिए. बहुत ही interesting topic है. Once you get the idea of the fraction, so it will very helpful to you in the higher sections, right? When you go to the 8th class, 9th class and 10th class, so fractions are very important, and the decimal values are also very important. It will help you lot, right? So this is the basic foundation of the fraction and decimal, right? इसका जो प्रीवियस जो एग्जाम्पल्स है वो आपने प्रीवियस जो क्लासेस है उसमें आपने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, राइट? सो इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन दिस क्लास. जो आपने प्रीवियस नॉलेज आपका है वो आपको इस क्लास में भी, 7th क्लास में भी काम आएगा. एंड वॉट एवर द नॉलेज और द एक्सपीरियंस यू विल गेट इन द 7th क्लास, दैट विल बी एप्लीकेबल इन टू द हायर सेक्शंस, राइट? सो जस्ट बी केयरफुल. बहुत मज़ेदार है. मैथमेटिक्स को जनरली हम फील करते हैं कि ये थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली बोरिंग. इफ़ यू गेट द आइडिया ऑफ द मैथमेटिक्स, देन इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, राइट? सो आई होप दिस इज़ वेरी सेटिस्फैक्ट्री सेशन फॉर यू. आपको सारी कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, राइट? एंड जस्ट keep watching and keep learning and keep enjoying the mathematics. And thank you for watching this video. All the very best. Have a nice day.